Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter legislature, and under this chapter we have started our discussion regarding the law making process of the parliament, and in this regard we have discussed about the types of the bill, and we have also discussed what is a bill. Bill is a draft of the proposed law, है ना? And then we saw the types of the bill. There are the bills can be categorized or classified on two bases. The first is if the bill has money is related to money matters, then it is called money bill, and other bills are called non-money bill. And other than this, there is another classification of bills on the basis of the person who is proposing the bill. When a minister proposes a bill, it is called government bill, and when a non-minister proposes a bill, it is called a private member's bill. So we have discussed all these things, and now we will see how the law making process is what is the law making process of the parliament. So first of all, we must understand that it is not always the parliament where the law making process starts. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस हो रहा है वो पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है. एक्चुअली इट स्टार्ट्स with the needs of the people. There may be society may there may be some problem in the society. There may be need of some kind of legislation. A group of people may be of the view that a new law must be made regarding any issue. ठीक है. सो इस तरह के लॉ की जो डिमांड हो सकती है वो लोगों की तरफ से आ सकती है, पीपल की तरफ से आ सकती है. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो फील कर रहे हैं कि इस तरह का लॉ बनना चाहिए, उनकी तरफ से ये डिमांड जो है वो आ सकता है. लाइक जब हम 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो लॉ बना, उस लॉ की जो स्टार्टिंग हुई, उसकी जो डिमांड हुई, वो लोगों जो खास करके जो वुमेन ग्रुप है उनकी तरफ से ये डिमांड आनी शुरू हुई. वुमेन से रिलेटेड जो एनजीओज थे उनकी तरफ से ये डिमांड आनी शुरू हुई कि जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक लॉ के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग लॉ है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो ये डिमांड आई कि उसमें चेंजेस लाना चाहिए, नए लॉ बनाने की ज़रूरत है. और फिर धीरे धीरे वो जो डिमांड थी वो काफ़ी स्ट्रांग होती गई, और अल्टीमेटली एक नया लॉ जो है वो बनकर तैयार हुआ 2005 में, विच वाज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द वुमेन. तो ये सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है. इट्स नॉट कि ये इट स्टार्ट्स इन द पार्लियामेंट ओनली. लोग उसकी डिमांड को लेकर के दे कैन स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, दे कैन रेज देयर डिमांड थ्रू वेरियस वेज. लाइक प्रोटेस्ट के अलावा वो सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हैं, है ना. तो लोगों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, दे कैन डिमांड फॉर दिस न्यू लॉ. अदर देन दिस वी नो political parties are the most important element in a democratic government. In a democracy, political parties they play the vital role. So many times we see that a political party pressurize the government to initiate a bill, or it pressurize the government कि कोई बिल को स्टार्ट किया जाए, because that party has promised during the election, during the campaigning, the party has promised that it will initiate that particular bill, or the party has wrote in their manifesto that if they come to power, है ना, if they come to power they will
initiate a particular bill. So if in that situation, if the party comes to power, then what is the need? Then the ruling party will initiate the bill because it has promised to the people in their manifesto. They have written in their manifesto that they will initiate a particular type bill. तो ये अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अगर पार्टी रूलिंग पार्टी है तो फिर वो उसके लिए एफर्ट करेगी. देन अगर वो रूलिंग पार्टी नहीं है, इफ इट्स एन अपोजिशन पार्टी, एंड स्टिल इन दैट सिचुएशन we will see that that opposition party will pressurize the government to initiate a particular bill because that party is supporting the issue which is there in the bill. और उनका ये ओपिनियन होता है कि इफ़ वो इस तरह के बिल को इनिशिएट करा देते हैं पार्लियामेंट में तो इट विल सेंड अ positive signal to the people and it will increase their chances of winning in the forthcoming election. तो इस तरह से जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, बी इट रूलिंग पार्टी, बी इट opposition party, both of them plays a very important role in mobilizing the people in keeping the demands of the people in front of the government. कि गवर्नमेंट पे वो प्रेशराइज करते हैं, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर बिल. तो इस तरह से political parties, they also play a very important role in law making process. Other than this, there are interest groups also. Interest groups are those groups which represent a particular group of people, है ना. इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक लॉयर्स का ग्रुप हो सकता है, टीचर्स का ग्रुप हो सकता है, डॉक्टर्स का ग्रुप हो सकता है, सो बिजनेस पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है. सो इंटरेस्ट ग्रुप्स आर related to a particular group of the people and they do not take part in the election. This is the difference. You all are aware about the difference between a political party and a pressure group or interest group. Pressure group, interest group, both are same. Okay, so जो प्रेशर ग्रुप होते हैं या जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, their main function is to pressurize the government. वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं. क्यों प्रेशर डालते हैं? ताकि गवर्नमेंट जो है वो उस ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम कर सके जिस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो इंटरेस्ट ग्रुप दे ऑल्सो प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन लॉ मेकिंग. अगर कोई ऐसी लॉ की डिमांड है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तो वो उस डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि उस डिमांड से रिलेटेड जो लॉ है वो बनाया जाए. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देन मीडिया इज ऑल्सो देयर. मीडिया भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है. अगर कोई लॉ में बहुत लूप होल्स हैं, काफ़ी कमी है उस लॉ में जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो जो मीडिया होती है वो उस लॉ की जो लूप होल्स हैं उसको सामने रखती है, लोगों के सामने रखती है और इस मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि लोगों को मोबिलाइज करती है और ये करती है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है ताकि वो लॉ, एक नया लॉ बना सके या जो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, डिफेक्टिव लॉ है तो उसमें चेंजेस ला सके. तो ये सभी जो हैं वो इनिशिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं. एक तो ये प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, बोथ आर सेम, ये हुए. देन हमने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज, they also play
a prominent role in initiation of a legislation. Then there are another group of people. Other than this, what we find that media is also there. So these are the important elements who take part in the initiation of legislation. So what we find that law making is not just a legal process कि law making के लिए कौन सा process follow करना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली या जो भी कन्वेंशन डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही लॉ बनना चाहिए. इट्स नॉट ओनली अ लीगल प्रोसीजर बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन. ये पॉलिटिकल मैटर भी है. लीगल, ये सिर्फ लीगल प्रोसीजर नहीं है बल्कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो इनिशिएशन में जिस तरह से हम देख रहे हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इनिशिएशन में, इट प्रूव्स दैट इट इज अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन. ये एक पॉलिटिकल काम होता है लॉ को बनाना. बिकॉज जब भी कोई बिल आता है, इनिशिएट होता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है. लाइक द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रिसोर्स है या नहीं हमारे पास. सपोज कोई लॉ तो बना दिया गया लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने रिसोर्सेज की नीड है दैट much of resource is not available with the government. So in that situation that law will bring out the lacuna, the loopholes of the government. तो गवर्नमेंट ऐसे बिल को नहीं लाएगी. गवर्नमेंट देखेगी कि जिस बिल को भी हम ला रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं. देन इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कि अगर बिल जो हम ला रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इफ सपोज दैट बिल बिकम्स अ लॉ, तो इन दैट सिचुएशन वो क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा, कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे, कितने लोग उसको अपोज करेंगे, और इस तरह से जो सपोर्टिंग और अपोजिंग होगी उससे क्या उनके जो फोर्थ कमिंग इलेक्शंस है उसके रिजल्ट्स पे क्या कुछ उसका असर पड़ सकता है. तो ये जो है वो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लॉ मेकिंग जो है वो हम वी हैव डिस्कस दिस कि हाउ लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो इन सब एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छे से कंसिडर करती है क्योंकि किसी भी इस तरह का लॉ को अगर वो ले आती है जिससे कि पीपल स्टार्ट अपोजिंग द गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए बहुत वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसको गवर्नमेंट जो है उसका मेन एम तो यही होता है कि वो ऐसा काम करे कि हर अगले 5 इयर्स में जब वो इलेक्शन हो, जब वो लोगों के सामने जाए तो लोग उन्हीं को अपना वोट दें. तो वोट लेने के लिए वो ऐसे ही लॉज को लाएगी जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जनरेट हो सके. एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि इट्स नॉट अ लीगल प्रोसीजर बट इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑल्सो. एंड नाउ वी सी दैट जो हमारा आज का समय है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि 1989 के बाद से क्या हुआ है कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हम क्या देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है जो नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये आई कि सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बंद हो गया. 1989 के बाद से लेकर के 2009 तक का जो इलेक्शन होता है उस समय तक में हम यही देखते हैं कि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती और हमारी कंट्री में एक नए पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, एक नया एरा की स्टार्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोalition एरा या कोalition पॉलिटिक्स which started from 1989.
1989 के बाद से कोalition पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, और कोalition का मतलब यही होता है कि सिंगल पार्टी इज नॉट एबल to win the majority of the seats in the Lok Sabha, and in that situation what happens that more than one party make an alliance, or more than one party come together, and so that they can get the support of the majority in the Lok Sabha and they can be able to form the government. तो उसी को हम लोग कहते हैं कोalition गवर्नमेंट. तो कोalition गवर्नमेंट जब होती है तो उस कंडीशन में क्या हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी ये काफ़ी उसे लॉ मेकिंग प्रोसेस में नेगोशिएशन बहुत करना पड़ता है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग दैट मोर देन वन पार्टी इज रूलिंग एट द सेंटर, है ना. तो जब मोर देन वन पार्टीज हैं एंड उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट होते हैं, हर पार्टी की आइडियोलॉजी एक दूसरी पार्टी से अलग होती है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर ऑल्सो डिफरेंट, है ना. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि कोalition पॉलिटिक्स के अंदर जब गवर्नमेंट को, जब कैबिनेट को कोई नया बिल लाना होता है तो उसको ये इस बात का ख्याल रखना होगा, इट मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द व्यूज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कोalition, कि जो भी कोalition के पार्टनर्स हैं वो इस बिल के आने से अगर वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हो सकता है कि कैबिनेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है कि जो कोalition का पार्टनर डिससेटिस्फाइड होगा बिल के कारण, हो सकता है वो कोalition को छोड़ दे. हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट पार्टनर ऑफ द कोalition विल स्टॉप गिविंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट, और उस कंडीशन में कैबिनेट जो है वो उसको मेजॉरिटी के सपोर्ट को वो लूज कर जाएगी और उसको रिजाइन करना पड़ेगा. तो इस तरह की जब कोalition पॉलिटिक्स होती है तो फिर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो और भी बढ़ जाती है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि जो भी कोalition पार्टनर्स है उन सबको साथ लेकर चलना है. और ऐसे में वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे अंडर चैप्टर एग्जीक्यूटिव, वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द power of the prime minister has declined in this era of coalition politics, because जब coalition politics होता है तो prime minister is not able to take strong decisions. Whatever decisions the prime minister is going to take, he has to take into consideration the views of all the coalition partners, and in this situation what we find that the prime minister starts playing the role of the negotiator. वो negotiate करना पड़ता है उसको different coalition partners के साथ, तो वो एक negotiator का रोल प्ले करने लगता है. तो ये जब हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोalition गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट है उसके पावर्स कम हो जाते हैं और उसको बहुत सारे जो भी कोalition पार्टनर्स है सबका ख्याल रखना पड़ता है. तो और इस तरह से इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कैबिनेट होती है वो डिसाइड कर लेती है किसी एक बिल को स्टार्ट करने की, है ना. तो जब वो बिल के लिए उसने अपनी अप्रूवल दे दी कैबिनेट ने कि हाँ ये बिल हम लाना चाहते हैं, नाउ व्हाट वी फाइंड कि उसको उस अपने आप को सपोर्ट भी करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर हम कोई नई बिल ला रहे हैं तो उसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पॉलिसी, किस पॉलिसी को हम फॉलो करने के लिए इस नए बिल को ला रहे हैं, है ना. तो कैबिनेट जो होती है वो सबसे पहले उस पॉलिसी को अप्रूव करती है जो कि लेजिस्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लेजिस्लेशन लाया जाता है. उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ड्राफ्टिंग होती है बिल की. जो भी हमारा लॉ बनना है, प्रपोज्ड लॉ है, उसका एक रिटन में उसको तैयार किया जाता है जिसको कि हम ड्राफ्ट कहते हैं, है ना. अब ये जो ड्राफ्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, ये ड्राफ्ट जो प्रिपरेशन होता है दैट इज डन बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री. वो मिनिस्ट्री जिसके
जिससे रिलेटेड लॉ बनना है। सपोज अगर कोई लॉ बनने जा रही है जिसमें कि जो गर्ल्स के लिए मैरिजेबल एज है उसको रिड्यूस किया, उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे पहले ये 18 इयर्स था, अब उसको मान लो, सपोज करो इसको 21 इयर्स करना है गर्ल्स की मैरिजेबल एज को। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये जो लॉ बनने जा रहा है, जो प्रपोज्ड लॉ है, दैट इज रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग द एज ऑफ द गर्ल्स, मैरिजेबल एज ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21। तो ये दिस इज रिलेटेड टू द लीगल सिस्टम, है ना, ये हमारे लॉ से रिलेटेड है। तो इसका ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? ये जो एक्ट बनने जा रहा है, दिस एक्ट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। अदर देन लॉ मिनिस्ट्री और भी एक मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लाइक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो बिल बनने जा रहा है मैरिजेबल एज को राइज करने का गर्ल्स की, तो ये जो बिल बनने जा रहा है इसमें दो मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होगी। एक तो हमारी लॉ मिनिस्ट्री हुई और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के सुपरविजन में बिल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, बिल जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि बिल की ड्राफ्टिंग हो गई, बिल तैयार हो गया। अब उसके बाद बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ इट इज अ नॉन मनी बिल। अगर एक नॉन मनी बिल है तो वो किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और कौन इंट्रोड्यूस करेगा? हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बिल? द बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी हाउस का जो मेंबर है, अगर उसको हाउस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो लोकसभा का कोई भी मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसको राज्यसभा में इनिशिएट किया जा रहा है तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर उसको इनिशिएट कर सकता है। बट हियर ऑल्सो वी फाइंड कि ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल। ओनली दैट मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस द बिल। जो कि हमने देखा था कि कुछ बिल्स होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट बिल कह रहे हैं, कुछ बिल्स होते हैं जिनको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कह रहे हैं। जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट बिल, जो नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं हम प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करने का राइट तो सबको है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो यही होता है कि जो मिनिस्टर अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वही बिल को इंट्रोड्यूस करता है। ओके, और जब एक नॉन मनी बिल तो कहीं भी हो जाएगा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल के रिगार्डिंग ये हमें याद रखना है कि इट इज गिवन इन आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज। सो वी विल सी the first stage of the law making process is the introduction of the bill. And this the bill, non-money bill, can be introduced in both the houses, and it can be introduced by any member of the parliament, but mostly any member of the house. But mostly we find that only the government, only the minister who is responsible for the subject introduces the bill. ओके, तो इंट्रोडक्शन हो गया बिल का। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा? सेकंड जो स्टेप है वो है डिस्कशन ऑन द बिल। ओके,
अब ये जो बिल पे डिस्कशन होना है, ये डिस्कशन पूरे हाउस के में भी हो सकता है, ठीक है। द डिस्कशन कैन टेक प्लेस इन द होल हाउस, बट व्हाट वी सी कि हमारे यहाँ कमिटीज का स्टार्टिंग हो गई है, कमिटीज का जो कन्वेंशन है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हाउस में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और इतने ज़्यादा मेंबर्स अगर डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कशन कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। लाइक हमारी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो 543 मेंबर्स अगर किसी भी मैटर पर डिस्कशन करेंगे तो दैट डिस्कशन इज गोइंग टू बी यूजलेस, बिकॉज इतने सारे लोग अपने व्यूज़ को रखेंगे, किसी की भी बात को सही ढंग से ना समझा जा सकेगा ना सुना जा सकेगा। तो वही सिमिलर कंडीशन राज्यसभा में भी होती है, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि 245 मेंबर्स हैं। तो ये इस कारण से क्या हुआ है कि कमिटीज़ का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गया है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसमें क्या होती है, कमिटीज़ बन जाती हैं। जब भी कोई नया लॉ आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो उस पर जो बिल्कुल थॉरो जो डिस्कशन होता है, डिटेल्ड डिस्कशन जो होता है, दैट इज डन इन द कमिटीज ओनली। तो कमेटी में डिस्कशन होती है, ठीक है। ये डिस्कशन कहाँ होती है? ऐसे तो हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, बट जो हमारे कन्वेंशन है उसमें हम ये देखते हैं कि कमिटीज में ये डिस्कशन होते हैं। ओके, अब कमिटीज में जो डिस्कशन होगा उसके बाद क्या करेगी कमिटी, जो है वो रिकमेंडेशन भेजेगी हाउस को, ठीक है। और सारा कुछ डिस्कस करके वो ये बताएगी कि उसका क्या व्यू है, कमिटी की क्या व्यू है रिगार्डिंग द लॉ, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन। Recommendation of the committee is sent to the house. अब ये जो रिकमेंडेशन भेजा कमिटी ने हाउस को, उस पे क्या होगा कि हाउस में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये इसको हम देख रहे हैं कि कमिटी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सारे डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन कमिटी करती है, देन वो रिकमेंडेशंस देती है, और उस रिकमेंडेशन पे जा कर के वो जो हमारी हाउस है उसमें डिबेट होता है, ठीक है। तो ये इस कारण से क्या कहा जाने लगा है, कमिटीज को क्या कहा जाने लगा है, मिनिएचर लेजिस्लेचर कहा जाने लगा है। ये जो हम जिन कमिटी की हम बात कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड मिनिएचर लेजिस्लेचर। मिनिएचर लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो लॉ मेकिंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, बट व्हाट वी आर सीइंग कि जो चीफ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर है that is not done by the whole house, but actually that function is performed by the committees, and that is why they are called miniature legislature। छोटा सा एक legislature है, पार्लियामेंट जो कि बहुत बड़ा हाउस है उसका वो एक छोटा फॉर्म है, मिनिएचर फॉर्म है। तो कमिटीज का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये हम ने जो डिस्कस किया इसको हम ये पूरा फर्स्ट स्टेज में आएगा। अब सेकंड स्टेज जो है वो क्या हो रही है कि जिसमें कि कमिटी के रिकमेंडेशन को हाउस में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द ये तीनों स्टेप जो है, ये तीनों मिलके हमारा फर्स्ट स्टेज का कहा जा सकता है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब सेकंड स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हाउस है वो हाउस डिस्कस कर रही है। यहाँ तक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, और अब सेकंड स्टेज की हम बात कर रहे हैं जहां पर कि हाउस
we'll start discussion. Discussion in the house on the recommendation of है ना। तो ये सेकंड स्टेज होता है, और फिर यहाँ पर डिबेट और पूरा डिस्कशन होता है, पूरी हाउस डिस्कस करती है, और फिर आगे जो है वो थर्ड स्टेज को वी विल डिस्कस द थर्ड स्टेज इन द नेक्स्ट क्लास।